Okay. Assalamu alaikum, students. Um, we are starting our Internet of Things, lecture number 28. Please confirm if you can hear my voice clearly and can see the slides clearly. Okay. Abrar, can you hear my voice clearly and see the slides? Yes, sir. Okay. All right. Thank you. All right. Any questions from our material we have covered up till now? Do you have any questions? Okay. No questions. All right. We had we were discussing in our previous couple of lectures a case study of robot car because your this group project, the current one, is also a robot car implementation. It doesn't have to be 100% matching, but we are learning what are the typical things which you can put on a robot car for sensing and controlling, and how can you connect it with the web by using our previous knowledge of connecting to the web, publishing on web and controlling from web. In this context, we had this example kit. You also have a kit similar to that as far as main parts are concerned. The chassis and the this DC motors, DC motor, the chassis, the uh, the sensors for the distance measurement. These two, number 9. You will have the Raspberry Pi, 4, 8 gigabytes available. You can use also Raspberry Pi 0W. You have a choice. We have both of them available. You can use uh, wheels, camera. You will have, okay, and a kit where you can assemble these wheels, these motors, Raspberry Pi. An important thing, yes, in our kit, this for the tilt and pan of uh, the sensors in the front, uh, we will not, will have a fixed stand where you'll put these both sensors, distance sensors and the camera like this. You'll have a stand like this, which is shown here, which means this. Instead of putting it on this mobile stand, you will have this one, this fixed stand, which will be directly hooked up to the chassis of the car. And you will have in this way these two eyes or distance sensor installed. This way you'll put the camera installed, and maybe you can put teeth there if you want, just for making the looks same. Here is the camera, here is the ribbon for the camera. You have that. You need to connect that camera to the, uh, over here there is a place in your board for connecting of the camera. There is a special connector for connecting this camera ribbon. We'll put that there. An important thing which we mentioned uh, but did not discuss in detail, and we need to do that for implementing this car, is our driver card. Uh,
we mentioned of a driver card. Why do we need it? And what does the driver card, what does it do? Why we need it? Um, and how we implement this interconnectivity for the driver card. This was the detail we will see. There is a Adafruit card here for moving of this stand. As I mentioned, this stand, tilt, and pen. Uh, we because we are not using this stand, we are using this fixed stand on this. So you don't need that card, which was moving this stand in your kit, which you will be using. So your things will look like this this way. Uh, More closer to this, you will have a, this is your driver card for driving of your motors here. That wires going from there are going down, connected to your motors, which are below, and moving the wheels. Here is your Raspberry Pi. This camera and eyes, this all is fixed on the chassis, and this ribbon cable is coming and getting connected here. This board you don't need, because this board was for moving the servo motors here in this stand over here. Okay. But you need the driver card board because you are using these motors, the DC motors which move the wheel. So for that you do the driving part. Okay, so one thing which we'll learn in more detail today is how to interface from Raspberry Pi to our DC motors via this driver card and use it for when we said move forward, move back, and rotate, turn. So what all we did here. Okay, so we'll talk about it. We had discussed how these devices will be physically put together, and then you will exercise their basic working, which means you will see the motor is moving, um, the the camera is capturing in the initial phase by using our basic codes which you had learned earlier. Initially you will just test them individually. That's the way of developing things. You will first run a small code and see, is this distance measuring thing working? You will see, is this camera capturing by taking an example picture? You will write simple code and see, can you move by Raspberry Pi a code where these motors, you may even put it upside down initially uh, and see, do you get the right actions by your code, moving the wheels forward, moving the wheels backward, and any other combination. So you will see that. And after testing those individually, we will run them as a whole. And when we said when we run them as a whole, uh, then we prefer that we will convert it into classes form. Our those test codes, small pieces of code which we have tested, we put it together in the form of classes so that when we do the rest of our coding like integrating with web, etc. So we use these classes which are readily built by us. So we convert, after doing that basic exercise with each part, we write a whole code in the class form, and we discussed that it's detailed last time that okay, here are those code. Here's a code for moving the wheels forward, backward as a class. Here's a class of robot wheels where we move it forward, backward, etc.
and then we made the dancing of the car based on our its wheels. There are two types of dancing. One is by using the wheels. The whole body of the car does the dancing. We use the word dance here. There was another dance which was the head was moving and doing the dance. So in your kit which you are using, this dance still will be done. In your case this dance will be done, and secret dance the camera can still take those pictures secretly when it was doing the wheels based dance using this class. Okay. And as I told, the other dance which was based on the camera movement, that dance in your kit uh, will not be required. ये ये दूसरी हमारी क्लास थी रोबोट कैमरे की। इसमें हमने कैमरा से पिक्चर्स लेने का कोड डाला था, तो वो आप कैमरे से पिक्चर लोगे। लेकिन इसमें जो एडाफ्रूट PCA 9685 के ज़रिए से आप उसको मूव करने के लिए कोड यहाँ लिखा था, इसकी आपको उस केस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वो मोटर्स जो आपके कैमरा के टिल्ट एंड पैन के स्टैंड पे थी उनके लिए था। तो आप ये कार्ड भी वहाँ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप इसका कोड भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। इससे भी आपने डांसिंग करवानी थी उसकी, तो हम कह रहे हैं कि यू यूज ओनली वन डांसिंग एंड दैट इज व्हील्स बेस्ड डांसिंग, एंड ड्यूरिंग दैट डांसिंग दिस PC कैमरा पिक्चर विल बी टेकन। Okay, so in this case also you can do that previous dance of the wheels and take the camera picture and test this class. We also wrote the class and tested in which we could generate different notes of kind of the robot singing using the buzzer and switching it on and off for different duration to generate different notes. So we have this reward beep class in which these are the notes, and your buzzer plays these notes and you test and run by saying that you initiate this class by reward beep. We had learned that you can put all your this physical working at one place, complete together and test after going through those piecewise work and check here that we have put robot wheels which we built just now. We put robot beep, the music thing. We had earlier learned it tail lights thing. We have learned the robot camera. Okay. So we put all these things. You also do that for your kit and make this robot dance class which uses all of them. We learned and understood this in our last time. Okay, then we saw by using our previous knowledge of how you integrate physical things connected on Raspberry Pi to web dashboard and publish that data there. We have done it earlier as a just publishing of our temperature and humidity sensors and our movement detection system PIR based sensor, uh, that we sense those data and published it on things board as a dashboard, and we saw that, we learned that. We will use the similar things, same knowledge and experience now in this context, and we'll publish on the web dashboards, same things board, uh, build same dials, etc. In this case, for the car data, right? So we can have like the example we covered here, like you have a distance sensor in the front and you
show its data on the web dashboard, and you change the distance and see that you change the data on the web dashboard. So that is sending data, sensors data from your robot car to a web dashboard and publish it there and see it in terms of pictorial dials and cards, etc. So we learned that also in the same context, and we saw that here was this our final assembled car. This card and this stand will not be there in your case. Rest, this will be there, this will be there, and you have on that kit a provision for providing these cells or batteries to power this thing when it is moving around in a big space, right? So then you can't have this thing connected by your adapter uh, of power which you have. But when you are developing it, you don't have to use the cells from the very beginning. You can use your adapter, uh, which is connected here and gives the power over here to this. And you can use that power for feeding to this your driver also, the external adapter, and see it either by raising it, all those actions on the wheels and all movements and capturing, etc., or by in a limited way, even moving on a small table and testing the thing. So you don't have to connect these cells for power from the beginning, because you will keep running out of cells very after some time, which you don't need. You will be comfortable with the adapter, build the whole thing, see it on a small table doing, then you put the chargeable cells into that pack which you have, and then run it in the hall or your lab. Okay, so this is will be the scheme of things when you work on it. We have discussed one of the sensors, uh, in this case the distance sensor, which we mentioned. We said there is 4 points here: power supply, 5 volts, ground for activating its circuits, making its circuits work, and then there is a trigger and a echo. The trigger is given to this sensor from your Raspberry Pi to generate a pulse which goes and hits a object and comes back, and the output from this sensors comes an echo which you will read in your Raspberry Pi here. But because that level of that echo is 5 volts, uh, uh, the level of that echo can be 5 volts or more, 5 volts actually. So you will add a voltage divider networks. We learned the details of the voltage divider network last time. We connected some 3.3 330 ohms and 470 ohms to divide it in a ratio of 3 by 5 or something, so that this 5 volts is applied as around 3 or 3.3 volts to our Raspberry Pi. We feed this from the center point. This end goes to ground, this end comes out of the echo, and this is the voltage divider, and the center point of that, after reducing the voltage from 5 volts to 3.3 volts, is fed to this. This is very important. If you feed directly 5 volts to your Raspberry Pi, its voltage limits are limited to 3.3. You can then damage the your system. So it's okay. Okay.
ये हमने इसको देख लिया और ये कर लिया डिस्कस। ऑलराइट, अब हमें ये सारे जो हमने भेजना है डाटा, अब वेब को उस डाटा को रीड करना, ये सेंसर डाटा को, और फिर इसको वेब पर भेजना, ये काम करना है। तो ये वो पार्ट है कि हमारा ये जो HCSR04 जो हमारा ये डिस्टेंस सेंसर है, उसकी यहाँ वो इंटीग्रेशन कि किस तरह उसका इको और ट्रिगर को आप यूज़ करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 है टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स योर डिस्टेंस, और उस सेंसर को, डिस्टेंस सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी एक रोबोट आइज के नाम से हमने क्लास बनाई है। पिछली हमने दूसरी चीज़ों की क्लास देखी थी, अब क्योंकि ये डाटा हम इसका टेस्ट करके और वेब पे भेजना चाहते हैं, तो अब हमने इसको भी टेस्ट कर लिया एज ए क्लास। Now we are ready. We can publish this robot car sensory data to the cloud or dashboard. We have used one of the free service available Thingsboard for this, and we have used it earlier. We saw this in our last lecture also. Same sequence of things कि आप डिवाइस का वो जो ऑरेंज थिंग आप क्लिक करेंगे तो इट विल ऐड, क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ऐड डिवाइस के लिए। उसमें आप नेम MQTT के ज़रिए आपने ये भी MQTT को इंस्टॉल किया। अगर पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ था तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंक्लूड कर लेंगे। ये तो डिस्टेंस सेंसर के लिए हमने इंक्लूड किया है, ये टाइम के लिए लाइब्रेरी इंक्लूड की है। अब हम ये दो चीज़ें MQTT कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हमने एक SMQTT ये वाली लाइब्रेरी से वो कर लिया क्लाइंट को, और ये जेसन को इंपोर्ट कर लिया, और हमने यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिशिंग द डाटा ऑन द वेबसाइट। और ये हमने देखा है पहले भी, लास्ट टाइम भी, कि बेसिकली हम उसको होस्ट आपका जो थिंग्स बोर्ड है उसका डेमो पार्ट हमें फ्री अवेलेबल है, तो हमने उसको होस्ट बनाया, दैट विल होस्ट अस ऑन द वेब। तो ये होस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ। ये एक्सेस के लिए टोकन आपने यहाँ दिया, और ये आपका है पब्लिश ऑफ थिंग के लिए, पब्लिश ऑफ डिस्टेंस। ये जो हम डिस्टेंस सेंसर से, यहाँ अपने डिस्टेंस सेंसर से डाटा ले सकते हैं, जो हमने पीछे कोड लिखा है उसको इस्तेमाल किया, और उस डाटा को पब्लिश करने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा, जिसमें हमने कहा कि ओके पहले गेट द डाटा, बाय यूजिंग दैट फंक्शन यू गेट द डाटा एंड देन पुट इट इनटू अ directory initialized to 0, but then putting the data into the directory at that location. So put the data in the directory, then make a client, MQTT client, instantiate that, उस क्लाइंट को ये एक्सेस टोकन का मेथड से एक्सेस टोकन दें, उस क्लाइंट को डॉट कनेक्ट मेथड से कनेक्ट करें होस्ट के साथ एट पोर्ट 1883 फॉर 20 सेकेंड, और फिर आप ये पब्लिश का कहें कि यू वांट टू पब्लिश दिस डाटा, और टू दैट टेलीमेट्री ऑप्शन फ्रॉम दिस डिवाइस बाय यूजिंग द json.dumps. Here is that sensor data which you are connecting. सेंसर डाटा हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और फिर इसको आप डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये पब्लिशिंग ऑफ ऑन द वेबसाइट जो हमने देखा कनेक्ट हो रहा है। तो अब हमने सेंसर्स को, क्लास को रोबोट आई थी उसको इंस्टेंशिएट किया। यहाँ हमने वो डाटा पहले यहाँ प्रिंट कर लिया, जो गेट डाटा किया था, गेट डिस्टेंस डाटा सेंसर से, उसको प्रिंट भी किया और फिर उसको पब्लिश भी कर दिया। रोबोटाइज डॉट पब्लिश डिस्टेंस आप ही का मेथड था, उसको यूज़ किया, वो मेथड यहाँ है, तो ये डाटा वहाँ पब्लिश हो जाएगा। फिर स्लीप 5 सेकेंड आपने कहा।
जब हम ये पब्लिश करते हैं, लाइक अवर लास्ट केसेस, आप लेटेस्ट टेलीमेट्री पार्ट में जाके जब देखें ये रोबोट आई के डाटा को, तो वहाँ ये जो भी डाटा आपने भेजा होता है वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ नज़र आ जाता है। आपने हमेशा डायरेक्टरी बेस्ड इंफॉर्मेशन बनानी है, क्योंकि इट टेक्स दैट फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू पब्लिश देयर। इट नीड्स द डाटा दिस की एंड वैल्यू फॉर्म। तो आपने यहाँ की में डिस्टेंस की वैल्यू वहाँ लिखा हुआ है, वर्ड के प्रिंट हो, और वैल्यू में जो भी कोई आपके डिस्टेंस सेंसर ने वैल्यू वहाँ पर दी थी वो इसने सेंड की है, और ये वैल्यू वहाँ पर पब्लिश होगी, की एंड वैल्यू, और उसके साथ यहाँ पर कि किस डेट और किस टाइम पर ये काम हुआ। तो ये आपका वो डाटा पब्लिश हो गया थिंग्स बोर्ड पर, जिसको आपने अभी पब्लिश की इंस्ट्रक्शन दी थी। हम अक्सर ये तो हमारा वही कोड, उसकी डिटेल। अच्छा, हम अक्सर फिर ये चाहेंगे कि ये डाटा जो हमने भेजा है बाय यूजिंग MQTT प्रोटोकॉल एंड जनरेटिंग डाटा ऑन द ग्राउंड by this distance sensor, we have sent it to the dashboard in the web and seen it in written there. Now we want on the dashboard see this data into a pictorial form on dials, cards, analog dials, digital dials. There are so many button. So many ways to express pictorially this data, and all those are readily available in that you can use them. So now you want to show the same data on a pictorial thing. You call the selections of various options of pictorial as widgets. Okay? So you say that now you look at, you get that data which you have got in the text form. हेलो, हाँ अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं अभी क्लास हो रही है, मैं अभी तुम्हें रिंग करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? कोई अर्जेंसी तो नहीं? हाँ बताओ। ओके ओके, मैं अभी करता हूँ फिर क्लास के बाद, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह। अच्छा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टू ऐड द फिजिकल डायल्स एक्सेट्रा, यू सिलेक्ट ओवर हियर, ये टिक कर देते हैं द एंट्री जो हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिली थी, और उसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि यू शो ऑन द विजेट दिस डाटा। फिर आपको वो आप वहाँ से विजेट को सिलेक्शन कर लेंगे कि कौन सा डायल किस शक्ल का, एनालॉग, डिजिटल, क्या, और वो सारी सिलेक्शन के बाद वो आपको कहेगा ओके अब आप इसको डैशबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। वंस यू हैव सिलेक्टेड एन एनालॉग गेज एंड यू वांट टू शो दिस डाटा, तो आपने वो सिलेक्ट किया, तो अब आपको ये वहाँ पर डैशबोर्ड पर पेस्ट हो गया जो आपने विजेट सिलेक्ट किया था। तो अब ये ऐड टू डैशबोर्ड हो गया, आपने कर दिया, ठीक। अच्छा, इसमें आपको हमें ओके, अगर आप ओके all right, we are back. um, you can see the slides, okay? Slides is being shared, you can see the slides. नहीं सर, अभी स्लाइड्स, हाँ आप नजर आ गए, ठीक है। Okay, Yes, sir. Slide show. okay.
ओके। ठीक है, तो अब हमने ये नया डैशबोर्ड क्रिएट किया और उस पर ये डायल को पेस्ट कर दिया। ये हमने यहाँ तक हम थे। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी थी जो हम करना चाहते थे कि अच्छा अभी इसमें चलो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट, इसी में देर इज ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट यू कैन प्ले विद दीज थिंग्स। यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रही है डाटा वो -100 से +100 है, और इसमें आपका ये वैल्यू जो 6 थी करंट वैल्यू वो शो हो रही है। यू कैन डू सम कस्टमाइजेशन ऑफ दीज डायल्स। उसकी हम वो करते हैं कि हमें कोई माइनस में वैल्यू हमारी नहीं है, डिस्टेंस हमारा कोई माइनस में नहीं है, तो हम कहते हैं कि यार ये हम डायल को मे बी के यहाँ से 0 शुरू करके और 100 तक करें, उसकी थोड़ी सी रेंज में भी विड्थ बेहतर हो जाएगी, और हमें माइनस वेस्टफुल पोर्शन पे जो डाटा देखने से हमारे इनका साइज छोटा हो गया है वो भी बेहतर हो जाएगा। इस तरह की कस्टमाइजेशन आप इन सारे विजिट्स में अलाउड हैं, बहुत सारी। यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर एंड यूज देम। यहाँ एक उसी की छोटी सी एग्जांपल उसने दिखाई ये वाली कि आप 0 से 100 कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं पहले बिफोर वी मूव टू द कंट्रोलिंग। ये आपने वो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड को सिलेक्ट किया, और अब आपने ये आपका था रोबोट कंट्रोल वाला डिस्टेंस का, कि रेडियल गेज को आप देख रहे हैं जो उसकी वैल्यू है। ठीक, इस पर आपने सिलेक्ट करके कलर का चेंज, ये बैकग्राउंड कलर का चॉइस के कॉम्बिनेशन ऑफ RGB क्या है। अगर आपने ये सारे कंप्लीट दिए तो ये 0, ये वाइट है। अदरवाइज ये आपको वहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स में दिखा देगा कि ये वैल्यूज़ जब आपको कलर डिफरेंट चूज़ करेंगे तो ये वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी। आप फिर वो वैल्यू जो आपको सूट करती हैं यहाँ के सिलेक्शन से वो आप दे देंगे इस RGB के पैनल में। ये वैल्यू ये वाली लेट्स से 50, 87, 126 वो उसमें वैल्यू चाहिए, वो आपका ये जो कलर इसमें आप इस्तेमाल कर रहे थे वो आपका उसके मुताबिक से एडजस्ट होगा। इसी तरह अब यहाँ पर या आपने ये सिलेक्शन इसमें दिया, उसने रोबोट बाइट्स में ये डिफरेंट चीज़ों को चेंज करने के सिलेक्शन थे। हम इस वक्त इस पार्ट में इंटरेस्टेड थे कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायल। ठीक है, ये आपको एडवांस फीचर्स में इस तरह की कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ऊपर भी बात चीज़ें मौजूद हैं। हमारा जो इंटरेस्ट था कि हम उसकी रेंज को ये चेंज करें फ्रॉम 0 to 100। पहले -100 to 100 था, अब हमने 0 to 100 चेंज कर दिया इसमें एडवांस फीचर्स को यूज करके। तो इसके इफेक्ट में हम देख रहे हैं ये डायल अब 0 से और 100 हो गया, और हमारी थोड़ी सी नीडल क्योंकि अब डबल मूवमेंट के साथ और ये जो इन बिटवीन पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए, तो आपको डायल की एक्यूरेसी और विजिबिलिटी बेहतर हो गई बाय दिस कस्टमाइजेशन। और फिर ये हमने जैसा लास्ट टाइम भी किया था कि आपने जब अपना ये डैशबोर्ड पे डाटा डाला एज ए यूज़र और ये सारे काम कर लिए, उसकी कस्टमाइजेशन कर ली, उसको यूज़ कर लिया, नाउ यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स who can use this, like monitoring the distance of this car or temperature or whatever जो हम पहले भी करते रहे। any sense data जो आपने वहाँ डिस्प्लेस पे डाला हुआ है, इसको आप यू कैन शेयर विद अदर फ्रेंड्स। तो उसके लिए सिंपली क्या है कि आप इसका जो URL है यू कैन एक्सचेंज विद अदर फ्रेंड्स एंड एनी वन कैन गो टू देयर ब्राउजर and use that URL and get to that dashboard and monitor in addition to you those data, get the access to the dashboard। ये आपने इसने URL आपको दिया, आपने इसको शेयर किया और पब्लिक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये डैशबोर्ड पब्लिक, तो ये एक्टिविटी कर लिया। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, हमने पहले असेंबल किया एक कार को, रोबोट कार को, फिजिकल पार्ट्स को कलेक्ट किया, उन्हें फिजिकली असेंबल किया, उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया, उनको स्मॉल पीसेस ऑफ कोड से एक्सरसाइज करवा के फंक्शनैलिटी टेस्ट की,
उसका एक टोटल क्लास बना के पूरी चीज की फिजिकल और वर्किंग टेस्टिंग की, दैट इज अवर ऑन ग्राउंड कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द थिंग, कि वो आगे पीछे मूव राइट लेफ्ट टेक पिक्चर, ये सारा काम किया। उसके बाद हमने उसके अवेलेबल डाटा को वेब पे पब्लिश किया और वहाँ दिखाया। अब हम चाहते ये हैं कि वेब के उस डैशबोर्ड पर मुख्तलिफ कंट्रोल चीज़ें, कंट्रोल के हम वो बनाएं, ऑप्शंस, बटन्स और स्टिक्स और एनीथिंग, और वहाँ से ऑल दीज पीपल, जो वहाँ से हम उसको कंट्रोल करें। इट इज़ लाइक कि जैसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में उनका डाटा भी वहाँ देख रहे हैं और आप एनी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर टू दैट, कि जैसे ये क्वाडकॉप्टर वगैरह या यूएवी को आप कैमरे से देख रहे हैं, उस लोकेशन पे गए हैं, यू आर सिटिंग इन ए रिमोट लोकेशन एंड यू आर कंट्रोलिंग। सो नाउ, अभी था डाटा फ्रॉम डाउन टू अप in the cloud. Now we are saying in the cloud, you generate signals which will control this car up to down wala cycle. So controlling the robot car with web services calls. तो उसके लिए हमें डैशबोर्ड पर एक बटन हम बनाएंगे। उस बटन के ज़रिए से आप, हमने पहले एलईडी ऑन किया था, तो आप कोई एलईडी ऑन कर सकते हैं विच यू सी दिस बटन वर्क्स, और फिर हम उसी बटन को वी कैन यूज व्हेन वी प्रेस दैट बटन, यू कैन ट्रिगर अवर दैट कोड जो हमारा इसको डांस करवाता है, उसको हम ट्रिगर कर दें एज ए इंटरप्ट ड्रिवन, और फिर उसमें भी सिटिंग एनीवेयर you can switch and it does that dance and takes those pictures which we said it's a secret um, camera thing which is spying. तो आपने इसका ये रोबोट कंट्रोल के उसको ओपन किया, फ्रॉम रोबोट आइज टू रोबोट कंट्रोल। दिस विल बी फॉर नाउ कंट्रोलिंग के पार्ट के लिए आपने ओपन, और उस पे ये रोबोट कंट्रोल डैशबोर्ड पर आपने वो आपको ऑप्शन बता रहा है, ऑरेंज पेंसिल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो उस पर प्लस आइकॉन ऐड करेंगे, और ये न्यू विजेट्स जो अब कंट्रोल के विजेट्स हैं वो आपको जनरेट हो जाएंगे, कंट्रोल विजेट्स। एंड अब आप उसमें से ये देखिए कंट्रोल विजेट्स का ऑप्शन है कि आपको कौन सा करना है। ये प्रेस ग्रीन बटन का ऑप्शन है, दूसरा ये 10 वाला ऑप्शन है, तीसरा ये स्विच कंट्रोल के ऑफ या ऑन, आपने स्लाइड किया तो स्लाइड स्विच का ऑप्शन है। तो ये आपको वो मिल जाएंगे जिनमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो इन कंट्रोल विजेट्स की लिस्ट में। जिस तरह हमने पहले आउटपुट के लिए काम किया था वही अब काम इनपुट भेजने के लिए करेंगे। ये कंट्रोल विजेट्स की ये लिस्ट आपके पास आ गई। उसमें आपने ये जो सेटिंग्स हमारी थी आपके चॉइस की, कलर्स वाली, बैकग्राउंड कलर, ये एनेबल फुल स्क्रीन, ड्रॉप शेडो, डिस्प्ले, टाइटल, ये कस्टमाइजेशन के आपके ऑप्शन है। टाइटल का स्टाइल उसको वेरी करने के लिए वहाँ पर जो शो करना चाहते हैं आप, ग्रीन टेल लाइट, जो आप इसके ज़रिए से अभी पहले स्टेज में आप ये ग्रीन टेल लाइट को ऑन और ऑफ करेंगे इस स्विच से, और बाद में इसी आप स्विच को यूज़ करके ट्रिगर कर सकते हैं और डांस का ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये हमने उसकी सेटिंग्स में गए और ये सेटिंग्स की फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग अ स्विच टू सी दैट ग्रीन टेल लाइट जो हमारी कार की थी, दैट वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ बाय दिस कंट्रोल। वंस इट वर्क्स वी कैन यूज इट फॉर अदर पर्पजेस। तो इसमें हमने जो फंक्शन का सिलेक्शन आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल कराती है, उसके लिए आपने कहा कि टॉगल ग्रीन टेल लाइट वाले फंक्शन जो आपने लिखा हुआ है इसको आपने ट्रिगर करना है इस बटन के ज़रिए।
ठीक है, आरपीसी के उसमें आपने उस मेथड को मेंशन किया जिसको आपने इस बटन से, जो आपने वहां पर जनरेट किया है, उससे आपने उसको कंट्रोल करना है। तो अब ये है, पहले खाली ग्रीन एलईडी को हमने एक्सरसाइज करवाया और फिर इसी से दूसरे फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको करने के लिए अब आपका है कि यू विल जनरेट ट्रिगर from the dashboard, and it will be received and activated. It will create an interrupt to initiate a procedure on the ground on your Raspberry Pi, physical thing. तो ये हमने उसमें MQTT क्लाइंट एज MQTT ये इंपोर्ट किया। LED क्योंकि हमने इस्तेमाल करना था तो LED को लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। जेसन को हमें ज़रूरत है इस MQTT के एक्सचेंज में टू ट्रिगर द मेथड्स, वो कर लिया। तो अब हम ये कह रहे हैं, ये नाम हमने दे लिया डेमो थिंग्स बोर्ड डॉट IO का जो ये है, इसको हमने थिंग्स बोर्ड होस्ट का, बिकॉज दैट इज द होस्ट का नाम दिया। जो एक्सेस टोकन की वैल्यूज थी वो यहाँ डाली और उसको हमने ये नाम दे दिया एक्सेस टोकन वेरिएबल ने। और हमने एक सिंपल कोड जो पहले आपने बहुत पहले किया था वही कोड यहाँ लिख दिया कि आप अब ग्रीन LED जो हमने इसका नाम रखा है, दिस इज अवर नेम। एक्चुअली ये LED की क्लास या मेथड वहाँ क्लास अवेलेबल है, उसके साथ आप ये पिन नंबर देते हैं GPIO की पिन नंबर। तो आप उस क्लास को, जो LED की क्लास है, इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं फॉर दिस पिन नंबर। और जो इंस्टेंशिएट किया तो हमने ये नाम रखा, ये दिस इज अवर नेम ग्रीन LED। अब आपने ऑन कनेक्ट और ऑन मैसेज, इस केस में दो मेथड्स ये बनाए, ठीक है। तो उसमें आपने ऑन कनेक्ट में एक तो प्रिंट कर दिया कनेक्टेड विद, ये आपने इस स्टेज पे जब ये मेथड जब भी कभी रन होगा तो उसमें एक आपको ये प्रिंटेड रिजल्ट भी मिल जाएगा, ताकि आपको पता चले कि अभी ये कनेक्ट वाले मोड में थे तो आपने ये प्रिंट किया अपने अपने एंड पे, ठीक है। तो विद रिजल्ट ये आपका स्टेटमेंट था, उसके साथ ये स्ट्रिंग लगा दिया आपने, ये RC जो इसमें एज ए पैरामीटर था, ठीक है। ये क्लाइंट है, यूज़र डाटा और ये स्ट्रिंग, और ये कोई अगर एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आप दें तो एनीवे आपने ये RC में जो स्ट्रिंग डाला था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और आपने ये कहा कि ये जब ये कनेक्ट हुआ तो क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब, जो क्लाइंट सब्सक्राइब किया उसके लिए ये फाइल की लोकेशन आपने बता दी, ये फाइल की लोकेशन पाथ उसका दे दिया। और इसी तरह दूसरा ऑन मैसेज क्लाइंट यूज़र डाटा, और इसमें अब RC की स्ट्रिंग की बजाय मैसेज आपका है, ठीक है। और मैसेज को जो आपने यहाँ पे मैसेज है उसको मेथड कॉल किया डॉट पेलोड डॉट डिकोड UFT 8 बिट डाटा, जो अक्सर करेक्टर अनसाइंड 8 बिट डाटा फॉर्मेट के लिए जो करेक्टर लेवल की है UTF-8, वो आपने इसको इस्तेमाल करते हुए ये पेलोड डॉट डिकोड को इस्तेमाल किया। इसको इस्तेमाल करते हुए इस मैसेज को डिकोड करके लोड किया आपने इन दिस वेरिएबल डाटा, और उसके लिए जो जेसन हमने ये लाइब्रेरी ली थी उसके ज़रिए से लोड किया इस मैसेज को बाय यू आफ्टर डिकोडिंग एंड लोडेड इनटू दिस वेरिएबल डाटा। फिर जब लोड हो गया मैसेज, फिर आपने देखा कि अगर ये डाटा में जब ये चीज़ लोड हुई तो देखा डाटा में अगर मेथड का नाम, हमने वो मेथड सेलेक्ट करना है जो रिमोट RPC के ज़रिए चलना है, तो आपने डाटा के अंदर की को डाला, मेथड की को डाला। अगर उसके जवाब में मेथड इज दिस इक्वल टू टॉगल ग्रीन लाइट, तो फिर आपने इसको ग्रीन LED ऑन को किया, एल्स ग्रीन LED ऑफ। तो आपने उस डाटा में मेथड
टॉगल ग्रीन लाइट के लिए ये काम किया कि उसको यूज करते हुए ग्रीन एलईडी ऑन या ऑफ करें, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ये पैरामीटर इधर जो था वो क्या था। और फिर ये आपने उसके ये मेथड, ये इसमें ऑन मैसेज वाले प्रोसीजर में ये चीज़ डाल दी, फंक्शन में ये ऑन कनेक्ट वाले में डाल दी। अच्छा, अब ये आपके just like all other languages including Python, they are your dead functions। ये functions हैं आपके, जैसे होते हैं, ये भी function या method है, ये भी function या method है। अच्छा, ये इनको एक तो function को call किया जाता है as it is, वो भी it is like pasting that function there in the code। एक ये है कि आप interrupt driven functions के कोड को रन कर सकते हैं कि some interrupt is created and that triggers a method या procedure या function, ठीक है, उसको हम interrupt का method कहते हैं। हम यहाँ पर उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लाइंट है MQTT क्लाइंट, आपने इसको बनाया, इसका इंस्टेंस बनाया, क्लाइंट की लाइब्रेरी के क्लास से आपने इंस्टेंस बनाया, और ये है वो इंटरप्ट ड्रिवन एक्टिविटी। आपने कहा क्लाइंट डॉट ऑन कनेक्ट, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर है। अमूमन आपकी कोई एक्टिविटी होती है और असाइन हो जाती है लेफ्ट को, ये कॉज है, ये इंटरप्ट जनरेट हो रहा है। क्लाइंट ऑन कनेक्ट क्या करे, इट शुड रन द मेथड ऑन कनेक्ट, जो आपने लिखा था, ये वो पीछे लिखा हुआ है। दिस इज द इंटरप्ट ड्रिवन। एक तरीका हमारा होता है लूपिंग, पूलिंग, उसमें आप एक लूप डाल देते हैं और बार बार किसी फ्लैग या किसी स्टेटस को चेक करते हैं, और अगर वो स्टेटस चेंज होता है तो आप उसके मुताबिक एक्शन करते हैं। वो इंटरप्ट ड्रिवन नहीं है, उसमें आपका सीपीयू का टाइम ऑल द टाइम उस लूप में फिरता है और आपका सीपीयू उसके लिए रिजर्व हो जाता है टिल द टाइम दैट स्टेटस कम्स, वो उस लूप में रहता है। इंटरप्ट ड्रिवन ऑप्शंस में ये फायदा रहता है कि ओनली व्हेन दैट इंटरप्ट इज जनरेटेड, उस इंटरप्ट से रिलेटेड मेथड रन होता है। ये हमने कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं इस बात को, वो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि आपके क्लाइंट में ऑन कनेक्ट का अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ तो आपने ऑन कनेक्ट मेथड को रन किया। इसी तरह क्लाइंट में अगर ऑन मैसेज का ट्रिगर जनरेट हुआ, इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो ऑन मैसेज का मेथड रन हुआ। ये इसके सेलियंट नई बात है। और फिर ये क्लाइंट का यूजर नेम पासवर्ड में आपने एक्सेस टोकन दे दिया, और फिर आपने ये कहा कि क्लाइंट ने कनेक्ट, ये जो हमने कनेक्ट, और फिर ये आपने बताया थिंग्स बोर्ड का होस्ट, जो हमने ऊपर ये थिंग्स बोर्ड होस्ट, जो कि ये था हमारा थिंग्स बोर्ड वाला, इस ये कनेक्ट वाले ट्रिगर को जनरेट करने के लिए आपने कहा डॉट कनेक्ट, ये थिंग्स बोर्ड होस्ट, ये उसका पोर्ट नंबर, और ये उसका टाइम, ये 60 सेकेंड्स के लिए आपने किया। और फिर आपने कहा क्लाइंट लूप फॉर एवर, ये लूप में रहे जब आप जब तक इसको यूज कर रहे हैं इस चीज को, तो लूप में रहे। ये उसके हमने ये बात डिस्कस कर ली कि ये इसमें क्या करें। अच्छा, अब हमने ये सीखा अभी यहाँ पर कि किस तरह डाउनवर्ड फ्रॉम डैशबोर्ड एक स्विच को, कंट्रोल स्विच वहाँ जनरेट करके थ्रू विजेट, और उसको क्लिक करने से ग्राउंड पे एक एलईडी को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये हमने देखा। अब हम कह रहे हैं कि यार अच्छा, अगर हम एक स्विच से एलईडी को कर सकते हैं तो, और ट्रिगर करके हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाई नॉट हम एक स्विच वहाँ बनाएं और उसको अगर प्रेस करें तो उससे वो प्रोसीजर एक्टिवेट हो जाए जो इसको डांस करवाता है। वो भी एक फंक्शन है, एलईडी का ऑन होना भी एक फंक्शन था, उसकी जगह अगर हम फंक्शन डाल दें कि डांसिंग ऑफ द रोबोट, और हम इसी स्विच से उसको ट्रिगर कर दें, तो हम रिमोटली अपने इसको डांसिंग एंड टेकिंग ऑफ पिक्चर्स
सीक्रेटली वाले मोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो है कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इसको डांस के लिए, ठीक है। और ये वही सारे स्टेप्स जो अभी हमने स्विच के वाले किए थे ये यहाँ लिस्टेड हैं। वही एडवांस टैब में जाके डांस का मेथड, जो सेट वैल्यू ऑफ द मेथड जो हमने पहले वो की थी ग्रीन टेल एलईडी की, उसकी जगह आपने ये डांस वाले उसको सेट कर दिया। दिस इज़ द मेजर चेंज कि अब ट्रिगर उसी स्विच से होगा तो क्या चीज़ ट्रिगर होगी, ठीक। तो ये सारी करके अब हेयर इज़ दैट कोड जो आपको इससे डांस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा। सारा कोड बाकी इट विल बी सेम एक्सेप्ट ये एक लाइन जिसमें आपने वहाँ पर ग्रीन एलईडी को वो किया था पिन असाइन और वो, और इस केस में आप रोबोट डांस की क्लास को इंस्टेंस बना रहे हैं रोबोट डांस और इसको यूज करेंगे। दिस इज द ओनली चेंज। बाकी आप देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। तो ऑन कनेक्ट मेथड है वही, ऑन मैसेज मेथड है सेम, सिवाय इसके कि उस केस में था कि इफ डाटा का पैरामीटर इज ट्रू तो आपने उसको एलईडी को ऑन और एलईडी को ऑफ किया था। अब आपने एक तो डाटा मेथड में जब चेक किया और अगर आपके डाटा के मेथड में डांस का ऑप्शन है, डाटा के जब ये चेक कर रहा है ये पेलोड और डिकोड में जो डाटा बना है उसकी की मेथड डाले और उसमें अगर डांस का ऑप्शन है तो वो फिर डाटा में उसको चेक करके पैरामीटर को तो वो कहेगा ओके रोबोट डांस डॉट लेट्स डांस इन कॉग्निटो। ये हमने मेथड लिखा है जिसमें उसी क्रिएटिव पिक्चर भी लेता है, डांस करता है, हेड डांस करता है और पिक्चर लेता है, ठीक। इन योर केस here you will use wheel based dance of the robot and taking of the picture at the secretly in the same way। आपके केस में वो वाला कोड होगा और वो यहाँ पे फिट आएगा। ये आगे वो these things are same जो अभी हमने डिस्कस कर ली कि ये इंटरप्ट ड्रिवन काम हो रहा है और हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे क्लाइंट ऑन कनेक्ट और ऑन मैसेज को इंटरप्ट ड्रिवन यूज करके और ये मेथड्स को कॉल कर रहा है जैसे पीछे किया। ओके, अब हमने ये हमारा ये पूरा लूप हो गया कि आपने पहले उसके पीसेस को असेंबल किया, सेंसर्स एंड कंट्रोल डिवाइसेस एंड व्हील्स एंड फिर आपने उसको एक्सरसाइज कराई, फिर आपने उसको कॉम्पैक्ट क्लास बेस्ड कंप्लीट कोड लिखा, उससे उसको रन किया, फिर आपने वेब पर इसके डाटा को डिस्प्ले किया डैशबोर्ड पर, फिर आपने वेब से कंट्रोल करके इसको एक्टिवेट किया और इससे मुख्तलिफ काम लिए। ये सब हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम जो मैंने आपसे बताया था कि हमने अभी ये जहां तक इंटरफेस और हार्डवेयर पार्ट था उसको अभी हमने थोड़े से हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे लिया है। कुछ हमने डिटेल्स आपके साथ पिछली दफा जैसे जो था वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क, दैट वाज अ डिटेल एंड इट इज इम्पोर्टेंट थिंग, हमने उसको डिस्कस किया था। इसी तरह देर आर मोर थिंग्स जिससे आप उस लेवल पे फेमिलियराइज नहीं है और आपने उनको यूज करना है, तो अब वो डिटेल भी आपको बताएंगे क्योंकि नाउ यू हैव द टोटल पिक्चर। अब आप स्पेसिफिक पीसेस पर फोकस होकर उन डिटेल्स को देख सकते हैं। अब हम आज में जिस तरह लास्ट टाइम हमने वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क वगैरह की बात की थी, इस दफ़ा हम ये जो ड्राइवर कार्ड और व्हील्स और मोटर्स कनेक्टिविटी का इश्यूज हैं और क्यों है वगैरह, इसकी डिटेल अब डिस्कस करेंगे। बिफोर आई डू दैट, let's have if you have any question up till now, because now we will get into each parts further detail added into it. We'll add more sensors, we will see the details of things which we have already put but we don't understand के उसको exactly कैसे करना है। अब हम exactly वाली डिटेल पर जाएंगे और उसकी रीजनिंग्स भी देखेंगे। ओके,
So if there are no questions, so we get to that. हम ये कह रहे हैं अब कि हमारा अब ये कि ये मोटर को जो ड्राइवर से हमने चलाया था, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट, और हमें पता होने चाहिए हमें क्या चूज करना है, किस रीजन से करना है, उसको कैसे इंटीग्रेट और इंटरफेस करना है। ठीक। तो मोटर्स के केस में मैंने आपको पहले तो एक टाइम में बताई थी कि जब हमने शुरू में कोर्स किया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर। ठीक। हमने कहा था डीसी मोटर, ब्रश ब्रशलेस ब्रश दोनों, मगर डीसी मोटर। हमने कहा था कि स्टेपर मोटर्स जो स्टेप बिहेवियर के साथ काम करती हैं, एक्यूरेट स्टेपिंग बाय बाय ए गिवन नंबर। हमने कहा था सर्वो मोटर्स। ठीक। हमारे इस प्रोजेक्ट में जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, दो तरह की मोटर्स को डिस्कस किया है। एक डीसी मोटर्स यूज हुई हैं, ये जो हमारे व्हील्स के साथ 4 येलो शेप की मोटर्स लगी हैं, दे आर डीसी मोटर, जो हुक्ड ऑन है उनके स्पिंडल विद द व्हील, और इस तरह वो जब ये मोटर रन होती है तो व्हील वहाँ डीसी मोटर। हमारा जो कैमरे के नीचे पैन और टिल्ट का स्टैंड है, वहाँ हमारी सर्वो मोटर है। तो अब हम इसमें स्पेशली डीसी मोटर, हमारे केस में ये व्हील्स वाली मोटर, उसका डांस और इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको फर्दर डिटेल में देखना चाहेंगे। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ इंटरफेस करें तो हमें चंद इम्पोर्टेंट बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को जब आपने रास्पबेरी पाई से की आउटपुट पे कनेक्ट करना है, तो हम हमेशा इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे क्या वो पिन उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना सेफ है, दोनों के एंगल से। उस रास्पबेरी पाई की आउटपुट के एंगल से, जो बहुत ही क्रिटिकल है, वरना आप यू बर्न आउट द आउटपुट एंड डिस्ट्रॉय योर रास्पबेरी पाई। और दूसरा, जहां पर फीड कर रहे हैं उसमें कि अगर आप करंट उसको उससे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा देते हैं तो वो डैमेज होना। ये मामला को हमेशा बहुत केयरफुली जब आप फिजिकल सिस्टम्स बनाते हैं, उसमें हार्डवेयर लगाते हैं, तो ये डिज़ाइनर को बड़ा थॉरोली इन बातों को देखना चाहिए। मैंने एक स्टेज पर थोड़ा सा जब आपको एलईडीज का मामला सिखाया था, तो उस वक्त ये रैशनल बताई थी। अब वही चीज़ थोड़ी सी और ग्रो कर रही है जब हम डीसी मोटर्स की बात कर रहे हैं, और वो ये है कि हाँ, हमने कहा कि अगर हमारा ये रास्पबेरी पाई है और इसकी एक जीपीआईओ पिन है, सम देयर सो मेनी जीपीआईओ पिन, तो ये इसकी जीपीआईओ पिन है, वट एवर जीपीआईओ जीपीआईओ पिन, जो भी नंबर है, देयर सो मेनी। इससे आउटपुट अगर निकलती है और इस आउटपुट पे हमने कोई चीज कनेक्ट करनी है, जैसे हमने बहुत सी चीजें कनेक्ट की हैं, इस पर हमने एलईडी कनेक्ट करना है, इसको हमने अपने डिस्टेंस सेंसर को ट्रिगर देने के लिए इस्तेमाल करना है, इसको हमने 7 सेगमेंट या अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करना है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम इससे निकलने वाली आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको उस वक्त जब हम एलईडी भी कनेक्ट कर रहे थे तो बहुत एम्फेसिस से बताया था कि हमें देखना है दो बातों को। एक तो ये कितना करंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इसकी एक मैक्सिमम करंट लिमिट होती है। फर्स्ट करो ये आउटपुट है, किसी वजह से आप इसको अर्थ कर देते हैं यहाँ, तो एक जो भी कोई वोल्टेज है अगर वो जीरो अर्थ के साथ लगती है तो ए वेरी लार्ज करंट विल फ्लो, एंड
यहाँ तो अभी हम अर्थ डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो अर्थ को तो कोई नुकसान नहीं होगा, इट विल सिंक ऑल द करंट, बट ए वेरी लार्ज करंट विल पास थ्रू दिस पिन एंड इट विल बर्न आउट दैट पिन। तो इसलिए मैंने आपको जो एलईडी हम यूज कर रहे थे, हमने कहा वी कैन नॉट इवन एलईडी, हालांकि एलईडी की अपनी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, लेकिन एलईडी की अपनी वोल्टेज, लेट से जब वो फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट करता है और वो एक फॉरवर्ड सैचुरेशन होती है, तो अमूमन इस एलईडीज की जो लाइट वाले हम यूज कर रहे हैं, इनकी कोई हमने देखा था कि ये 2 वोल्ट्स ड्रॉप होता है तो ये कंडक्ट करता है और करंट भेजता है। एक केस में 3 वोल्ट्स, वो जो आरजीबी में हम देख रहे थे, लेट्स से 2 वोल्ट्स। जो वो विदाउट लाइट वाले दूसरे डायोड्स, इट्स डायोड, ये लाइट एमिटिंग डायोड है। जो दूसरे डायोड्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो ब्लैक से होते हैं, जिनका ये एलईडी पार्ट नहीं होता, वो भी डायोड होते हैं। उनके अगर आपने कहीं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा हो, उनका इससे भी कम होता है। उसमें जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस, और सिलिकॉन वाले डायोड्स का 0.7। इस क्या मतलब है कि जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो डायोड इससे कम वोल्टेज 3.3 या 0.7 पर, तो वो कंडक्ट ही नहीं करता, इट इज ओपन स्विच, इट डजंट कंडक्ट। आप अगर इधर से कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और जब तक वो 0.3 या 0.7 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगी, इसका फॉरवर्ड करंट नहीं होगा। जब वो लेट से इस वोल्टेज से ऊपर आप अप्लाई करेंगे, तो ये फॉरवर्ड स्विच ऑन की तरह हो जाएगा, यानी इसका ड्रॉप अपना फिक्स जो भी है 0.3 या 0.7 होगा, वो बढ़ेगा नहीं और आपका करंट बढ़ता रहेगा। ये इसको फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं, लाइक ए स्विच बिहेवियर ऑन ए नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड के वोल्टेजेस की ये लिमिट्स काफी छोटी होती है, सिलिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इसी तरह हमने जब ये लाइट एमिटिंग डायोड इस्तेमाल किए, एलईडीज सिंगल वाले, आरजीबी वाले, इनके अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज लेट से 2 वोल्ट्स बास केसेस में और बास केसेस में 3 वोल्ट्स जब आप क्रॉस करेंगे, तो वो उस वक्त फॉरवर्ड कंडक्ट करना शुरू करेंगे और वो आपकी लाइट ऑन होगी और वो आप देखेंगे। लेकिन इधर से अगर आपके पास 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट्स आ रहा है और आप इसको डायरेक्ट लगाते हैं, इट्स लाइकली कि वो करंट की मकदार जो फ्लो करे, या वो इसकी लिमिट से क्रॉस करे, एक तो ये डैमेज होगा, और अगर इसकी लिमिट से क्रॉस करे, इसकी भी एक मैक्सिमम करंट लिमिट होती है जिस तक ये, जब करंट बढ़ता जाता है ब्राइटर से ब्राइटर हो जाता है, समटाइम्स आपको जरूरत होती है, लेकिन एक हद के बाद इट बर्न्स आउट, लाइक जैसे आपका बल्ब जल जाता है। तो इस वजह से इसकी ऑपरेशन में हमने सीखा था कि इसकी आउटपुट पे आप एक प्रोटेक्शन रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर ये लगाते हैं, फिर इसको फीड करते हैं। इसलिए हमने अपने सारे उसमें ये 1 के रजिस्टर लगाए हुए हैं। उससे क्या होता है कि अब इसके अंदर करंट की मिकदार दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं कहूँ V प्लस कह देता हूँ, इसका नाम जो भी है 3.3, इसको मैं V डायोड VD कह देता हूँ फॉरवर्ड। तो फिर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा V प्लस माइनस VD डिवाइडेड बाय दिस R, जो भी है R लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रेजिस्टर R लिमिट, R लिमिट, ठीक है। ये हम हमेशा हमने लगाया है और इसकी वजह बताई है। इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज फिक्स हो जाती है जब ये फायर करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ये फिक्स हो गई 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, जो भी डायोड की नेचर है, ये 2 वोल्ट फर्ज हो गई। ये 5 इधर से अगर आ रहा था, या 3.3 आ रहा था, ये जब फॉरवर्ड कंडक्ट किया तो से 2 वोल्ट का था, ये 2 वोल्ट,
इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होने से वोल्टेज होगी दैट विल बी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ये वाली V प्लस माइनस वी डी डी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। अगर ये वोल्टेज को जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो हमें करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हम इसको इसको कहेंगे आई, मे बी आई आर, रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वही आपका करंट है, चलो आई कह देते हैं। रेजिस्टेंस से भी वही करंट है और वही इस पूरे सर्किट में इससे, तो इसलिए हम इसको कि ये आए इसको बर्न ना करे आउटपुट को, और ये तो हमने काम किया था और ये करना होता है, ये जरूरी है। इसी तरह अब इस केस में हमारा यही सिनेरियो है, अब इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो क्या है, हम कह रहे हैं, चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लें, ओके नहीं यहाँ, ओके इधर ही कर लेते हैं। अब हमारा क्या सिनेरियो, अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये है रेस्पबेरी पाई, ये उसका वही आउटपुट पिन है, जीपीआईओ आउटपुट पिन जो अभी मैंने बताई, जीपीआईओ जीपीआईओ, ये हमारा रास्पबेरी पाई। और इससे अब हम ये मोटर जो हमारी है, ओके ये मोटर है, वो जो येलो टाइप मोटर्स हैं उन मोटर्स में ये मोटर है, मोटर चार हैं, हम एक मोटर का केस डिस्कस कर लेते हैं और फिर वो चारों के लिए एप्लीकेबल है मोटर। ये रास्पबेरी पाई, ये इसके आउटपुट। अच्छा, अब आपके लिए इस इस मोटर को इसके साथ कैसे इंटरफेस किया जाए। ये हमारी डीसी मोटर है, इस केस में व्हील्स के साथ जो लगी वो डीसी मोटर। पहले डीसी मोटर के हमें डाटा देखना होगा कि इस डीसी मोटर को रन करने के लिए कौन से पिन्स हैं। दो पिन्स चाहिए आपको, एक प्लस साइड पे प्लस, एक में भी इधर माइनस। ये इस मोटर को एक तो ये रन करने के लिए प्लस और माइनस में आप यहाँ अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट इसमें से गुजरेगा इस सिंक में, और ये रन करेगी, रोटेट करेगी इन वन डायमेंशन। अगर आप इसके पॉजिटिव वोल्टेज इधर लगा दें, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ इस मोटर को चलाने के लिए, तो अगर आप इधर बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे और इधर बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे तो ये उसके साथ एक डायरेक्शन में रन करेगी। अगर अब आप बैटरी को उलट करके लगा दें कि आपका बैटरी का पॉजिटिव इधर लगा हो, बैटरी का पॉजिटिव आप इधर कनेक्ट कर दें और बैटरी के नेगेटिव को इधर कनेक्ट कर दें, तो यही मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो इट हैज टू पिन्स which can be connected either positive to positive of battery and negative to negative for running it in the forward direction, or you can connect ओके। तो हम इसको
ओके, अबरार आपको स्लाइड्स विजिबल हैं? अबरार आपको स्लाइड्स विजिबल हैं? यस सर, स्लाइड नजर आ रही। और हम उसी अकाउंट पर ही ज्वाइन हुए ना, यस सर, स्लाइड नजर। लेक्चर कर रहे थे, ठीक है? ऑलराइट, यस सर। ओके, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो हम यस इसमें सर। कह रहे थे कि ये डीसी मोटर को हमने एक तो सिंप के मुताबिक इसको फॉरवर्ड और बैक कर सकते हैं। फिर ये है कि इसका एक करंट का रिक्वायरमेंट है जो इसके साथ स्पेसिफाई होता है, विच इज मच लार्जर देन दिस जीपीयू व्हाट इट कैन प्रोवाइड। इस जीपीयू के प्रोवाइड करने की सलाहियत अगर 50 मिली एम्प्स की रेंज में है, तो ये इसकी नीड इससे कहीं ज़्यादा है, मे बी 500 मिली एम्प, और ये इसके डाटा में आपके मोटर के मिलेगा। अब अगर आप ये आउटपुट इसके साथ डायरेक्टली लगाएंगे तो ये इसको बर्न आउट कर देगा। इसको इसकी इसकी सलाहियत 50 तक थी, आपने एक चीज़ लगा दी जो उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है, जैसे मैंने कहा था शॉर्ट करेंगे तो इसको बर्न आउट, ये बर्न आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसमें ये ड्राइवर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यू आर यूजिंग द ड्राइवर कार्ड। आप उसके इनपुट पर जो स्मॉल करंट लेता है वहाँ ये जीपीआईओ के दो एंड्स कनेक्ट करेंगे। ये इन, इसका इन है, इन इन वन और इन टू, इन वन और इन टू। और ये इसके आउटपुट के दो जो है मोटर यहाँ लिखे हुए हैं आपके इसके कार्ड पर, मोटर का मे बी प्लस और मोटर का माइनस, ये आप इस पे कनेक्ट कर देंगे, ये इधर और ये इधर। इधर ये इन पे कम करंट आएगा, ये एक किस्म का आपका समझिए कि ड्राइवर है विच इज लाइक करंट एम्पलीफायर। ये ट्रांसिस्टर यहाँ बना देते हैं कि इसकी बेस पे अगर कम वोल्टेज और करंट अप्लाई हो तो इसकी कलेक्टर से हाई करंट जनरेट हो और इसमें आपकी मोटर चल सके। इस तरह की हमारी ये अरेंजमेंट है इसको रन करने के लिए, ठीक है? अच्छा, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये ड्राइवर हमें ये करंट की एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब एक और बात ये है कि इसको अब हमें रिवर्स करना है तो क्या करें, उसका क्या अरेंजमेंट होगा टू रिवर्स इट। दूसरे, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना हो कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है। एक तो तरीका ये था कि जो बैटरी से आप दे रहे हैं, अगर कम वोल्टेज दे रहे हैं तो कम स्पीड पे चलेगी, ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड पे चलेगी। एक हमें इसमें स्पीड को कंट्रोल करना है और एक हमने इसको डायरेक्शन को कंट्रोल करना है। अब ये दो काम हमें करने हैं यहाँ पर। कनेक्शन हम परमानेंट लगा रहे हैं, यहाँ पर जीपीआईओ से दो पिन है इसके इनपुट पे दे रहे हैं और ये एम्पलीफाइड करंट के दो आउटपुट इस पे लगा रहे हैं। तो अब विदाउट मूविंग दीज पिन्स हम ये दो काम करना चाहें कि इस मोटर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड में चलाएं और इस मोटर को स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकें। ये हमारा मकसद है करने के लिए। इस ड्राइवर से एक काम हम ये ले रहे हैं दो, उसके लिए ये हमारी ये दो, ये हम यूज करते हैं एच ब्रिज। इसकी शक्ल एच ब्रिज इसलिए हम कहते हैं कि इसकी शक्ल एच के शक्ल की है, ये एच के शक्ल का ब्रिज है, मगर ये बहुत काम की चीज़ है। एक तो वो काम हो गया ना, ये आप जो बैटरी अगर इधर लगा रहे हैं और इससे मोटर चलनी थी तो वो तो मोटर चलना एक काम था, मगर अब हम चाहते हैं कि इसको मोटर को दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलाएं विदाउट रिमूविंग द कनेक्शन, और करंट भी सफिशिएंट प्रोवाइड कर दें। ये अब हमारा एम है इसमें, ठीक। अच्छा जी, कैसे? ये हमारे यहाँ पर स्विच इसके चार हैं एच ब्रिज के, मोटर आपने इन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दी और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, दे आर नॉट मैकेनिकल स्विचेस, दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, जिनको जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इन वन और इन टू है,
वो आप इन पे जब अप्लाई करते हैं कंट्रोल की लाइंस इनकी, तो वो इन स्विचेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दे आर लाइक ट्रांसिस्टर्स जो ऑन या ऑफ हो सकते हैं, कनेक्ट ऑन या कनेक्ट ऑफ कर सकते हैं। दे आर ट्रांसिस्टर इन कंट्रोल इन 1 इन 2 जो हमारे पास था उनके जरिए से। तो अगर हम इन चारों को डिस्कनेक्ट करें तो अभी ये जो बैटरी की वोल्टेज है वो इस तक पहुंचेगी नहीं और ये मोटर ऑफ रहेगी। ठीक, अब हम एक अरेंजमेंट के तहत अगर हम इस स्विच को ऑन करें और इस स्विच को ऑन करें तो हमारा बैटरी का प्लस इधर अप्लाई होगा और इसके थ्रू ये गुजर के एक डायरेक्शन में आपका ये मूव करेगी। प्लस प्लस पे लगा हुआ है, माइनस माइनस सपोज, और ये रन करेगी एक डायरेक्शन में। दूसरी सिचुएशन में आप ये वाले ऑफ ही कर दें इनको दोबारा इसी तरह, और आप इसको ऑन करें और इसको ऑन करें दूसरी अरेंजमेंट। अब क्या होगा, अब आपका प्लस मोटर के दूसरे एंड पे अप्लाई होगा और ग्राउंड या नेगेटिव इस एंड पे अप्लाई होगा। पहले इस तरह अप्लाई हो रहा था प्लस मोटर के, और अब अपोजिट हो गया। विदाउट रिमूविंग द कनेक्शन आपने मोटर पर, जो अभी हम कह रहे थे कि अगर पॉजिटिव एक साइड पे देंगे तो एक सिम में टर्न होगी और पॉजिटिव दूसरी सिम में टर्न, ये काम हमने इसमें दोनों कर लिया इसके जरिए से, इस एक्टिविटी को अचीव किया। अच्छा, अब अगर हमने ये एक्टिविटी अचीव की है तो इसके ये हमारी उसकी डायग्राम है टू अचीव दिस एक्टिविटी। ओके, ये एक केस जो मैंने अभी बताया और ये दूसरा केस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस मोटर। इसके ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये मैं आपको स्लाइड्स में दे दूंगा, आप देखें। वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, ये पैरामीटर्स हैं जो आपको थॉरोली इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी समझाया है, जो भी मोटर लेंगे उसके इन पैरामीटर्स को देखेंगे और समझेंगे, और उसके डाटा से गिवन पैरामीटर ये वाले दिए हुए होंगे, इनको देखकर आपने जो हम यूज कर रहे होंगे आपका एच ब्रिज, वो इस किस्म के पैरामीटर्स का है। तो आपको ये पैरामीटर्स इस कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं और हर एक पैरामीटर को समझना है कि वो कैसे कर रहा है। और ये पैरामीटर्स हमारे बड़े सिंपल है कि वोल्टेज की रेटिंग क्या है, कि मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज जो आपकी ये मोटर ले सकती है। करंट की रेटिंग क्या है, आपका करंट जो इस मोटर में जाएगा उसकी क्या है, पल्स शक्ल में मैक्सिमम करंट, रेपिटेटिव पल्स मैक्सिमम करंट, बर्स्ट मैक्सिमम करंट, ठीक है, एंड कंटिन्यूस मैक्सिमम करंट। यानी आप पल्स की शक्ल में बाज दफा ज्यादा करंट दे सकते हो लेकिन कंटिन्यूस नहीं दे सकते, मोटर विल बर्न। तो कंटिन्यूस के लिए ये लिमिट होगी, ठीक। तो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ये लॉजिक सप्लाई, वो जो इन 1 और इन 2 पे आप सप्लाई दे रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन का कंट्रोल करने के लिए, ये वो है लॉजिक की सप्लाई। लॉजिक की सप्लाई करंट, मेन मोटर के सप्लाई करंट, और सॉरी लॉजिक की सप्लाई वोल्टेज, मेन मोटर की सप्लाई वोल्टेज, और करंट्स की मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज और कंटिन्यूस। ये वो वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं कि वोल्टेज इस रेंज में काम करती है इस मोटर की, पल्स शक्ल में ये 2.5 एम्प्स तक जाता है, बर्स्ट की शक्ल में 3 एम्प्स तक जा सकता है, कंटिन्यूस की शक्ल में 2 एम्प्स पे जाएगा, सप्लाई वोल्टेज 4.5 टू 7 रेंज में होगी, और लॉजिक की लिमिट 4.5 टू 7। ये एक एग्जांपल है ड्राइवर की जो ये प्रोवाइड करता है। हर एक ड्राइवर जो आप यूज कर रहे हो उसमें 2 मोटर्स कनेक्ट हो सकती हैं, ए एंड बी। और इसी तरह जो मैंने अभी एक मोटर के लिए प्लस माइनस बताए और इन 1 और इन 2 बताए, इसी तरह दूसरी मोटर बी के लिए इन 3 और इन 4 यूज हो जाएंगे, और इस तरह दूसरी मोटर
भी सेम ड्राइवर पर कनेक्ट की जा सकती है। एक ड्राइवर पर हमारे पास जो है 2 मोटर्स आप लगा सकते हैं, जिनको आप फॉरवर्ड बैक और दोनों डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग द कनेक्शन हम दोनों डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। ये डायरेक्शन वाइज इसको मूव करने के लिए ये कोड है। ओके, और टाइम इज फिनिश्ड। अब हम अगली दफ़ा जो देखेंगे वो एक ये देखेंगे कि किस तरह रास्पबेरी पाई के साथ, ये हमारी रास्पबेरी पाई, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये रास्पबेरी पाई, इसके साथ कैसे ये ड्राइवर सर्किट को कनेक्ट किया जाएगा, उसके आगे मोटर किस तरह कनेक्ट होगी, और इसी तरह 2 मोटर्स लग सकती हैं, और एक किस तरह मोटर को फॉरवर्ड और बैक डायरेक्शन में हम विदाउट चेंजिंग द कनेक्शन इस रास्पबेरी पाई से रन कर सकते हैं थ्रू दिस ड्राइवर। इसके हम फिर कोड भी देखेंगे, और इसके साथ 2 मोटर्स लगा के देखेंगे। फिर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, ये अभी हम देखेंगे कि मोटर को फॉरवर्ड, मोटर को बैकवर्ड, देन मोटर की स्पीड। तो हमें ये 3 चीज़ों के लिए कोड की शक्ल में लिखकर इस्तेमाल करेंगे, और फिर यही चीज़ है जो आपने अपनी इस जो रोबोट कार है उस पर इस्तेमाल करनी है। इसी तरह ये सर्किट और ये कोड। All right, so we can stop. If you have any question, you can ask. Else, we can uh, finish our class and do that. Okay? All right. Allah Hafiz.